So hello everyone, I welcome all of you back on my channel. Once again, I'm here with one another mock test of investment planning specialist. Thank you very much for giving so much of love to my YouTube videos, especially time value of money video, which has more than 12,000 views, and it is helping the students to understand the time value of money concepts for CFP program. Today, I'll take some very important questions from exam perspective, right? So I'll try to make it as easy as possible for all of you. So please understand those questions. They will definitely help you to clear the exam. So let's begin. So students, in this investment planning specialist online module, which we have already have 30 live classes taken by me extensively for this program of investment planning specialist. Then I have the homework which I gave in the whole program, right? And with all the homework, there is a solution sheet attached, and then the PPT I used in the class, and then mock test. Very, very important. So I'll be taking out of these 11 mock tests which we uploaded here. So I'll be taking some random questions from IPS mock test number 10 students. So the question says Mr. K is an investor who seeks to increase the market value of investment by $500 each month. Depending on the performance of the investment, he'll buying or selling shares in given period which approach is falling. Please understand this, very important. Let's say if you're depositing a same amount every month, like in mutual fund systematic investment plans. So that is basically rupee cost averaging, right? Because what you are doing, you are basically buying the mutual fund units every month at a certain cost, but the same amount. But if I say you that you are increasing your investment amount when market is down, and you are decreasing your investment amount when market is up. So in case if I am following this strategy that I'm putting more money when markets are down and into equity basically, and basically I am putting less money when markets are up. This kind of strategy is called student of value averaging. It is not rupee cost averaging. So what is the difference? In rupee cost averaging, my amount of investment is always same. It is constant. Like if I'm putting 1,000 rupees every month, it is 1,000. But in value averaging, my amount will keep on increasing and decreasing on the basis of situation of the market. That is called value averaging, right? अगर मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कोई आदमी बाय और सेल कर रहा है शेयर्स को, अब वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स का मैंने एग्जांपल लिया, अगर वो शेयर्स हैं, then it's also called value averaging. I hope it is clear. Now, next question. Next question comes that what is the name of behavioral bias that places a higher value on owned assets over assets that are not owned? So sometimes what happens, it's the biggest bias. Why? Because let's say अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स पड़े हुए हैं 100 रुपीज में, नाउ द प्राइस हैज कम टू 90 रुपीज, और आपको लग रहा है और सबको लग रहा है कि मार्केट में इस स्टॉक में पोटेंशियल नहीं है, स्टॉक इज गोइंग टू गो फर्दर डाउन. बट प्रॉब्ली जस्ट बिकॉज द रीजन बिकॉज ये आपके पास है और आपको लगता है कि ये मेरा है, मेरे पोजीशन है, you try to of that stock in your mind कि नहीं नहीं ये 100 रुपए से भी ऊपर जाएगा, इट इज लाइक क्योंकि मेरे पास है तो इट विल गो अप. तो इस तरह के जो बायस है, और बाकी अगर किसी और के पास वो चीज होगी तो आप उसको कम आएंगे या उसका कम प्राइस लगेंगे. तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज को ओन करते हैं, उसका प्राइस बेसिकली व्हेन यू प्लेस ए हायर एज कंपेयर टू एक्चुअल प्राइस व्हिच इज इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट बायस, राइट? सो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में बिहेवियरल फाइनेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड endowment bias. So come to the next question. So calculate the correlation between two securities if covariance between them is this and standard deviation of two securities this. So I hope you all know that when you calculate standard deviation of two securities given different weightage, आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करना पड़ता है. तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू कोरिलेशन. ये फॉर्मूला है. तो बोल रहा है कि कोरिलेशन बताइए अगर कोवेरियंस दिया हुआ है, एसडी दिया हुआ है दोनों का. तो आपको बेसिकली ये दिया, ये दिया, ये दिया, और आपसे ये पूछ लिया. सिंपल मैथमेटिक्स है. क्या करोगे आप, राइट? तो ये जो मल्टीप्लाई में है, इसको आप क्या कर लीजिए, SD1 मल्टीप्लाई बाय SD2, तो अल्टीमेटली आपका कोरिलेशन बच जाएगा. तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक्सेल में. It won't take much time. So what is your correlation? We have to calculate that, right? So in the case 0.00425 is your covariance. This is your covariance, right? 12%
और 9% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। SD1 एंड SD2 फॉर्मूले को इधर उधर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या समझाया, कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू कोरिलेशन आपको कोवेरियंस देता है, तो कोरिलेशन है नहीं, तो कोवेरियंस से उसको डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा 0.393519। तो ये क्या आ गया आपका कोरिलेशन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज कोरिलेशन, हाउ दे मूव टुगेदर, राइट। ठीक है, तो इट कैन बी फ्रॉम -1 टू +1। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो ये -1 से +1 तक हो सकता है। -1 का मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, और +1 का होता है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, राइट। और ये है 0.39, तो दिस इज योर आंसर, राइट। अब आपको कोवेरियंस चाहिए, तो आप SD1 इंटू SD2 इंटू कोरिलेशन कर लीजिए, और अगर कोरिलेशन पूछा है तो इसमें डिवाइड कर दीजिए SD1 SD2। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज अगेन ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको किया भी होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू CAPM, और ये CAPM का रेट आपको कई जगह काम आ जाता है। व्हेन यू कैलकुलेट द अल्फा इन दिस मॉड्यूल, देन भी आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला इज RF प्लस MR माइनस RF इंटू बीटा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है जो बता देता हूँ मैं आपको। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। तो अगर इस क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा होता कि रिस्क प्रीमियम क्या है, तो आपका आंसर होता 2%, राइट। 5% माइनस 3%, तो यहाँ पे दिस इज योर रिस्क प्रीमियम, राइट। अब आप चाहे अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो भी ER निकालने के लिए यही फॉर्मूला है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ ले तो यही फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 3% प्लस 5% माइनस 3% मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो ये कितना हो गया, 2% मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो इट इज बेसिकली 2.4 प्लस 3, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 5.4, राइट। वेरी सिंपल, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए हमें। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन यस, इट्स अ बॉन्ड क्वेश्चन। Now this question say what is the present value of an annual bond with having maturity of 6 years, फेस वैल्यू ये है, कूपन ये है, और यील्ड ये है। अब देखिए, अगर आपने मेरा बॉन्ड का वीडियो देखा हो, राइट, so present value of the bond is nothing but the price of the bond at present, right, कि बॉन्ड का आज की तारीख में क्या प्राइस है। तो अब आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे आपको पीवी निकालना है। सबसे पहले आप रेट आता है पीवी के फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट गड़बड़ क्या कर जाते हैं, रेट की जगह कूपन लिख देते हैं। यहाँ आपको लिखना है 7 एनुअल बॉन्ड है, तो ये आपको एनुअली कूपन देगा। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस बॉन्ड विल गिव यू द कूपन, 6 टाइम्स, कॉमा PMT। अब PMT इज द कूपन, तो 1000 रुपीज पे आपको 8.25% हर साल मिलेगा, तो कितना हो गया, 82 रुपीज 50 पैसा। स्टूडेंट फ्यूचर वैल्यू में हमेशा फेस वैल्यू आएगा बॉन्ड में, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड टाइप विल बी 0। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, अब क्या क्या लिखना है ये भी बता दिया है, राइट। विद दिस कैलकुलेशन यू विल गेट व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, एंड व्हाट इंपॉर्टेंट इज दिस, अगर स्टूडेंट यहाँ एनुअल की जगह सेमी एनुअल होता तो क्या होता, ये 7.9% डिवाइड बाय 2 हो जाता, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता, ये हो जाता 82.5 डिवाइड बाय 2, बाकी ये दोनों सेम रहते। तो सेमी एनुअल में आपने रेट चेंज किया, पीरियड चेंज किया, और आपने PMT को भी आधा कर दिया, बस इतना ही फर्क है। सेमी एनुअल का आपका पीवी निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपके लिए इसको एक्सेल पे कर देता हूँ। तो देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कुछ खास नहीं है इसमें, सो सिंपल, ठीक है। तो इट्स PV 7.9%, दिस इज यील्ड, तो रेट की जगह आएगा यील्ड। 6 टाइम्स आपको 82 रुपीज 5 पैसा मिलेगा। 1000 इज फेस वैल्यू इन जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं किसी बॉन्ड का, विच इज गिविंग अ रेट ऑफ रिटर्न, रेट आज की तारीख में 7.9 है, तो आप डिस्काउंट कर रहे हो 6 टाइम्स 82 रुपीज 50 पैसा को, और आपको 1000 रुपीज भी 6 साल बाद मिलेंगे। द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 रुपीज 161016 basically. Let's see what is the answer. This 1016 rupees 22 paisa is your answer. Now please understand this. Had it been a semi-annual bond, यहाँ 2 कर देते हम, ठीक है,
और आप देखिए सेमी एनुअल है तो साल में 2 बार कूपन देगा, इसका मतलब हाउ मेनी कूपन आई एम रिसीविंग, 12 कूपन्स, एंड दिस विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय, this is your basically semi-annual coupon, this thing present value. I hope it must be clear, right? Now, next question. So assume the tax next dividend for 5% rate of return and the dividend will grow by 6%. What is the stock must be selling today? देखिए, so what you are doing, you are basically trying to calculate the fair value of a stock. And when you are having given a dividend, and dividend is increasing with a certain rate, you can use dividend discount model, students. And what is dividend discount model? It is a model by which you can discount the future dividends and can calculate the present value of the security, fair value. And what is the formula? D1 equals to dividend expected divided by rate minus, what is rate? Rate is nothing, it's a rate of market return basically, right? एंड ग्रोथ इज डिविडेंड का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, राइट? पर ध्यान रखिएगा यहां पर डी बनाएगा नहीं, नेक्स्ट डिविडेंड। अगर ये करंट डिविडेंड होता तो मैं पहले इसे नेक्स्ट डिविडेंड बनाता और फिर उसे ऊपर रखता, लेकिन उसने डायरेक्ट बोला कि नेक्स्ट डिविडेंड इज 4। अगर वो बोलता कि करंट डिविडेंड 3 एंड विल इंक्रीज विद 5%, तो मैं उसको बढ़ाता, आई वुड हैव इंक्रीज इट, बट देयर इज नो नीड इन दिस क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल, 4 डिवाइडेड बाय rate is 10% minus 6%. This will give you the answer. So let's see what is the answer. So 4 divided by 10% minus 6%. So 100 is the fair value of the stock, right? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मान लीजिए फेयर वैल्यू निकल के आता है, अब मान लीजिए 100 आया, नाउ इन मार्केट इट इज ट्रेडिंग एट 120, सो इट इज ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। तो 100 इज द फेयर वैल्यू, मार्केट में 120 में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ओवर वैल्यूड है। अगर मार्केट में 80 पे ट्रेड कर रहा होता तो इसका मतलब क्या है? अंडर वैल्यूड है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, फिर आपको एक मार्केट में जो रेट कोट कर रहा होगा वो दिया होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कंपैरिजन करिएगा आप और निकालिएगा कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, राइट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। I'll come to the next question. Okay, this is a theory question. Answer is already there, but understand this. Which one of the four जो इन्वेस्टर दे सकता है और परचेज द मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टर इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर सेल? अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज मार्केट ऑर्डर? So if I want to sell my securities at any available price, or if I want to purchase any security at any available price, then I'll put market order. यानी मुझे प्राइस का चिंता ही नहीं है। I need that security or I want to sell that security any available price in the market. So I'll put market order. On the other hand, let's say if a security is 100 rupees, but I want to buy it in 95. So मैं ऑर्डर लगाऊंगा कि अगर ये 95 आ गई तो मुझे मिल जाए, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। और अगर मेरे को इसको सेल करना है, ये कोटिंग इन 100 रुपीज, तो मैं लगा रहा हूँ 120 सेल का ऑर्डर, तो ये 120 आएगा तो बिकेगा, right? So when I am giving a specific price for my securities, either for purchasing it or selling it, that is called limit order. Or if you want to buy or sell anything at any price which is available in the market, you'll put market order. And now what is stop order? It is also simple. For an example, आपके पास कोई 100 रुपए का स्टॉक है, आपने आज लिया, आपने उसे 120 में सेल में लगा दिया, बट आप चाहते हैं कि 90 रुपीज के नीचे आए तो ये तुरंत सेल हो जाए। So what are you doing here? That you are basically you want to limit your loss here. तो अगर आपने 100 रुपीज में खरीदा, 120 यू वांट कि 120 जाए, बट आप साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हैं कि जैसे ये 90 है उसके बिल हो जाए, ये सब चला जाए, ये बिक जाए मार्केट में। तो व्हेन यू वांट टू कंट्रोल योर लॉस और लिमिट योर लॉस, यू बेसिकली पुट स्टॉप ऑर्डर, राइट? अब व्हाट इज स्टॉप लिमिट? जो स्टॉप ऑर्डर में तो क्या होगा, 90 या 90 के बिलो में बिक जाएगा, बट स्टॉप लिमिट में ओनली 90 में ही जाएगा, व्हेन 90 इज द प्राइस। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो स्टॉप ऑर्डर जो होते हैं वो आपके लॉस को लिमिट करने के काम आते हैं, यानी
100 में कोई चीज खरीदी, यू ऑलरेडी हैव अ सेल ऑर्डर ऑफ 120, बट साइमल्टेनियसली आपको पता है कि अगर ये रिवर्स हो गया मार्केट, सो यू डोंट वांट टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क, और अपनी रिस्क को आप एक प्राइस तक कंट्रोल कर रहे हैं, उसके नीचे या उसके बराबर में वो स्टॉक बिक जाना चाहिए. सो देन यू केस यूज स्टॉप ऑर्डर. सो आई होप दैट whatever the 8 questions I have tried with you, you must have understood that. And so I hope whatever what we have discussed with you in this class, you would have understood those questions. I would come with some another questions which are important for the different exams, REPS, IPS, RTPS, and IFP also. So please keep on watching our videos. And if you need any help, you need online content of ours, if you want to join our classes, you're always welcome. So we are already having all the content online. You can buy there, you can contact us, and you will feel the difference of the learning and earning certification. Thank you very much, everyone.